परितन्वतनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायं नाता कुतिर्हितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वंदे ध्वनिदिताक्षं मृगपदतिलकं विठ्ठलेशं केशवम्। उपस्थित आप सभी अध्ययनकर्ता विद्यार्थी को मैं आज के सत्संग सत्र में अध्ययन सत्र में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हूँ। अपन निरोध लक्षणम की विभूति जो श्री हरिराय जी है वाको अपन अध्ययन कर रहे हैं और अपन ने अब तक में लगभग जो है वो 6 श्लोक हो चुके हैं और अब अपन 7वें श्लोक में प्रारंभ करेंगे। क्या के पहले कि अपन आज का अध्ययन प्रारंभ करें, मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है पिछले अध्ययन के विषय में तो आप पहले कर लें। आज के अध्ययन के विषय में जो प्रश्न आएंगे वो अपन अंत में लेंगे। अभी 2 मिनट में पिछले अध्ययन को यानी पिछले शनिवार को जो अपना अध्ययन है वाक्य विषय में अगर आपको कोई प्रश्न है तो वाक्य लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, तो वो अपन देख ले। मैं प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं, ये बात की मेरे को थोड़ी सी निराशा हो रही है। चलो एक हाथ तो ऊपर भयो है तो एक आनंद की बात है कि कोई अध्ययन करता है यहाँ। ओके, आप इनको अनम्यूट करो निकुंज भाई। हाँ हाँ जिज्ञासा। हाँ जी दंडवत प्रणाम जी। એટલે આપણે વાંચન કરવામાં એવું આવ્યું હતું કે મહાત્મા જ્ઞાન પૂર્વક સુદ્રઢ સર્વોધિક સ્નેહ ઇતિ ભક્તિ। તો જે એ મહાત્મા જ્ઞાન ને અહીંયા જે જ્ઞાનની વાત કરી છે એ બંને અલગ, એટલે અહીંયા કયા જ્ઞાનની જે વાત કરે છે? કેમ કે જે અગર સપોઝ આપણે એમ કહીએ કે જ્ઞાન એટલે ભક્તિ માટે જ્ઞાનની જરૂર નથી, તો હવે જે મારા ઘરે જે ઠાકોર બિરાજે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એ જાણવા માટે મને થોડુંક તો જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે કે આ ઠાકોરજી કેમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે। તો જે હા, તો જે પછી એ એટલે હું ડાયરેક્ટ ભક્તિ કરું વિધાઉટ જ્ઞાન, તો પછી એ એટલે જે મને ખબર પડી કે ભાઈ ચલો મહાત્મા જ્ઞાન છે પછી જ એની ભક્તિ થઈ શકે, એટલે એવું મને લાગે છે। તો જે કયા જ્ઞાનની જે સાચી વાત છે। હા, બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે, એકદમ एक्यूरेट पूछेलू है कि आ प्रश्न तो आवो ज जोईए कि भाई ज्ञान तमे ना पाड़ो छो तो साव ज वगर ज्ञान नु केवी रीते चाले, भक्ति थशे ज केवी रीते ज्यार सुधी जान न थाय कि आज पूर्ण पुरुषोत्तम छे। एटले एटलू ज्ञान तो अवश्य होवुं ज जोईए। महात्म ज्ञान पूर्वक नु जे छे आपणने सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह जोईए। केवल महात्म ज्ञान हशे ने अने स्नेह नहीं हशे तो ए भक्ति नहीं कहेवाशे, अने केवल स्नेह हशे अने ज्ञान नहीं हशे तो एमां छे ने अवज्ञा थई जवानुं के ठाकुरजीनुं विपरीत ज्ञान अने अन्यथा ज्ञान थवानो आपणने डर रहे छे। एटले ज्ञान अने भक्ति स्नेह ए बंनेनुं सम्मिश्रण એટલે કે બેલેન્સ હોવું જરૂરી છે। એટલું મહાત્મ જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને આ સિવાય અન્ય બધા જે હું જેમની ભક્તિ કરું છું એ સિવાયના અન્ય બધા પ્રાકૃત છે અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કે જે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે એ આ સ્વરૂપ છે, એટલું જ્ઞાન તો આવશ્યક છે। પણ અહીંયા જે જ્ઞાનની વાત કરી રહ્યા છે તે બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાત કરી રહ્યા છે કે જેના માટે અક્ષર બ્રહ્મના જ્ઞાનની વાત કરી રહ્યા છે કે જેના માટે ભક્તિ એક સાધન રૂપે છે કે ભક્તિ દ્વારા જ્ઞાન મેળવવું અને જ્ઞાન દ્વારા મુક્તિ મેળવવી। એ ત્યાં જ્ઞાન માર્ગનો જે ક્રમ છે અહીંયા એની વાત થઈ રહી છે કે એ જ્ઞાન કેવલ કોરું જ્ઞાન અને અથવા તો એમ કહો કે એ જ્ઞાન ભક્તિને સાધન રૂપે કરીને
મેળવવાનું જ્ઞાન છે, અને એ છે અક્ષર બ્રહ્મનું જ્ઞાન. અક્ષર બ્રહ્મ એ પરબ્રહ્મ નથી. અક્ષરથી ઉપર જે પુરુષોત્તમ છે તેની ભક્તિની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. એના માટે મહાત્મ જ્ઞાન પૂર્વ સુદૃઢ સર્વતો અધિક સ્નેહ ભક્તિ એ જોઈએ છે. અને ભક્તિનો અર્થ શુદ્ધ સર્વતો અધિક સ્નેહ જ છે. પણ એ કેવો સ્નેહ હોવો જોઈએ? તો કે મહાત્મ જ્ઞાન પૂર્વસ્તુ સુદૃઢ સર્વતો અધિક સ્નેહ. એટલે એમાં એટલું તો મહાત્મ જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ કે આપણે કોની ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ, આ કોણ છે, એટલી તો જાણ હોવી જ જોઈએ. અને એ સિવાય પછી એમાં સ્નેહની જ અધિકતા છે. ત્યાં જે જ્ઞાન છે અક્ષર બ્રહ્મનું જ્ઞાન, બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ જે શ્રુતિ કહે છે, ત્યાં એ જે બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમની વાત કરે છે ત્યાં અક્ષર બ્રહ્મવિદની વાત કરી રહ્યા છે કે અક્ષર બ્રહ્મનું જે જ્ઞાન મેળવી લે છે તે પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. પણ એ પરબ્રહ્મ કેવો છે? નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્ય ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન યમી વેશ વૃણુતે તેન લભ્ય. એટલે એ પરબ્રહ્મ તો કેવલ એને જ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેનું એ પોતે વર્ણ કરે છે. એટલે એ સ્નેહરૂપી બીજ જે છે એ જે જીવની અંદર મૂકે પ્રભુ પોતે, એને જ તે પ્રાપ્ત થાય છે. તો ત્યાં પરબ્રહ્મ એ એમની રીતે પ્રાપ્ત થાય છે પોતાની રીતે જ. એમાં જીવનું સાધન ચાલતું નથી. જીવનું સાધન જ્ઞાન સુધી જ ચાલે છે. એટલે અક્ષર બ્રહ્મના જ્ઞાન સુધી જીવનું સાધન ચાલે છે. એના ઉપર તો ભગવાનની પોતાની જેને પોતે વર્ણ કરે છે એને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ જ્ઞાનની, એ અક્ષર બ્રહ્મનું જ્ઞાનની વાત કરી રહ્યા છે. અને એના માટે ભક્તિ કેવલ એક સાધન છે. પણ પુષ્ટિ ભક્તિ માટે જ્ઞાન એટલે પેલું અક્ષર બ્રહ્મના જ્ઞાનની આવશ્યકતા નથી, પણ કેવલ મહાત્મ જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. શ્રી કૃષ્ણને જાણી લે એને પછી અક્ષર બ્રહ્મને જાણવાની એવી કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. અહીંયા કહેવાનું તાત્પર્ય એમ છે. જી જી સમજ આ તમારું ક્લિયર થયું ડાઉટ? હા જી જી. હવે બીજા કોઈ છે અહીંયા? और कोई है यहाँ पे जिनको कोई पिछले विषय में कोई शंका है? कोई हैंड रेस हुए नहीं है तो मैं यही मान कर चलूं कि अभी आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है. और धीरे धीरे मैं देख रहा. हाँ સદૈન્ય પંચાંગ પ્રણામ જયશ્રી. આ જ પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં આપને કીધું મહાત્મ્ય જ્ઞાન. મહાત્મ્ય જ્ઞાન એટલે જસ્ટ ટુ ક્લેરિફાય, કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ ઠાકોરજી છે, અને એ જ જ્ઞાન થી સર્વ નિજેચ્છાત કરી શકે એ ભાવ જ મહાત્મ્ય જ્ઞાનમાં ગણાય કે એનાથી વિશેષ? હા, એટલે મહાત્મ જ્ઞાન હશે તો જ એ ભાવ આવશે કે સર્વ નિજે છાતા કરી શકી. એ જો મહાત્મ જ્ઞાન હશે તો જ એ ભાવ આવશે હૃદયમાં. એટલે આ જે મહાત્મ જ્ઞાન, આ જે તમે વાત કરી રહ્યા છો કે નિજે છાતા કરી શકી, એ ભાવ એનું ઇફેક્ટ છે મહાત્મ જ્ઞાન. કે મહાત્મ જ્ઞાન થશે તો જ આ વસ્તુ આપણને સૂઝશે કે અરે પ્રભુ તો કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ સર્વ સમર્થ છે, અને કરતા કારયતા પ્રભુ સ્વયં જ છે. અન્ય કોઈ બીજું નથી કે જે હું કરતા નથી, હું કરાવનાર નથી, કરાવનાર તો પ્રભુ છે. એ મહાત્મ જ્ઞાન હશે તો જ આ વસ્તુ ખ્યાલમાં આવશે. આજે જયશ્રી ક્લેરિફાઈ થઈ ગયું. ઓકે, ગુડ. કોણ છે? પુનિત. આમને હું જાણતો નથી. આ કોણ પુનિત? એડમિટ તો કર્યું છે પણ પહેલી વાર મેં જોયો છે ક્લાસમાં. એટલે હું પૂછું છું કે આ કયા પુનિત છે. એની મારો મેસેજ મળ્યો હશે.
જોઈન થયા છે. ઓકે, નો प्रॉब्लम. तो આપણે હવે अपन आगे बढ़े आज के विषय में. आज को विषय प्रारंभ करने से पहले भी एक और बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि आज को उत्सव शरद पूनम को उत्सव है, तो वाकई मतलब ऐसे तो कल ही हो गई पूनम, पर आज भी जैसे मिट्टी तो पूनम ही है. क्या तो मैं आज के उत्सव की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ. और जब अपन शरद पूनम की बात कर रहे हैं तो ये महारास और लघुरास को जो सब्जेक्ट है, विषय है, और वाको पूनम के साथ पूरा संबंध है. आप लोग भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, ये राजपंचाध्याय को पहला श्लोक है. तो वो अपन ये शरद पूनम के दिन को याद आवे और अपन प्रासंगिक है, तो मैं थोड़ा सा राजपंचाध्याय के विषय में भी बोलना चाहूंगा. और आज को जो श्लोक है, दृश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपा युक्तो यदा भवेत् तदा सर्वं सदानन्दं हृदिस्थं निर्गतं बहिः, ये जो 7वां श्लोक है, वाको भी संबंध या राजपंचाध्याय के साथ में ही है. या कि बीच में रोक के मैं आप लोगों को ये संदर्भ आदि दूं, वाकई से अपन शुरुआत में ही यह विषय को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि यही की चर्चा या श्लोक के विवरण में आवे वाली है. तो अपन राजपंचाध्याय के विषय में थोड़ा सा अपन चर्चा कर लें. तो राजपंचाध्याय ये निरोध को ही फल है. आचार्य चरण में तामस फल प्रकरण में ये राजपंचाध्याय को रखो है कि तामसन को फल प्राप्ति भगवान ने या 5 अध्याय के अंदर कराई है. तो वो निरोध को फल है, निरोध को स्वरूप है कि निरोध कैसो कि प्रपंच विस्तृति पूर्वक भगवद आसक्ति वो कैसी होवे, वो अपन को या राजपंचाध्याय के अंदर देखने में आवे है. तो या में ठाकुर जी को जब इच्छा भई कि अब फल को दान करनो है अपने भक्तन को, तो भगवान ने इन रात्रिन को जब देखो, तब भगवान की इच्छा भई. तो भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतु मनश्चक्रे, भगवान की इच्छा भई के रमण करवे की रंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता. तो योग माया को आश्रय लियो, आश्रय कियो, या योग माया को अपने आश्रित करके वाकु आज्ञा दी के अलौकिक रात्रियां प्रकट करें. और उन अलौकिक रात्रि में ऐसो अपनो योग अपनो माया को प्रभाव करे कि वाक्य द्वारा ये ठाकुर जी को जो रमण को जो है इच्छा है वो पूरी हो सके, हमें सहायता मिल सके. तो ऐसे प्रकार की अलौकिक रात्रि को प्रकट करने की ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा दी. और तब ये रात्रि प्रकट भई और भगवान ने तब निशम्य गीतम ये योग माया तदोड़ु राज ककुब करे मुखम प्राच्या विलिंपन अरुणेन शंतमे सचर्षणी नाम उदगा शुचो हरन ये प्रियायायु दर्शन. ऐसे फिर वहां में ठाकुर जी ने वेणुनाद किया. वो वेणुनाद जैसे ही सुनो, निशम्य गीतम तदनंग वदनम वदस्य कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुर अन्योन्यम लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जगलोल कुंतला. वो जो वेणु को नाद है वो इन गोपीन ने सुनो और अत्यंत विकल होके वो वहां से अपने जो जो कार्य कर रही थी वो सब छोड़ के वैसे ही वहीं पे को त्याग करके और अपने अपने घर से निकल पड़ी. बहुत सी अपने जो काम कर रही थी वो सब काम छोड़ते हुए, कोई घर को संवार रही थी, कोई गाय को दूह रही थी, कोई पति और बच्चा को अपने परोस रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई घर के दूसरे काम कर रही थी. तो ये सब करते हुए उन्हें वहीं के वहीं छोड़ के और वैसे ही ठाकुर जी की जैसी
वेणुनाथ सुनाई दियो, वैसे ही वह दिशा में चल पड़ी कि जहाँ से ये ध्वनि आ रही थी। उनमें तो बहुत से इनको उनके घर वाले ने, उनके संबंधी ने रोकवे को प्रयत्न करो, परंतु वे कोई के कहवे सु रुकी नहीं और वे वहां से चल दी। बहुत सी ऐसी भी हंसी कि जिनको ठाकुर, जिनको उनके संबंधी ने रोक्यो और उनको रुक जाना पड़ो, और जिनको रुक जाना पड़ो, जिनको वेणुनाद सुनाई दियो और सुनने के बाद में वो उद्यत तो हुई आवे के लिए, परंतु प्रतिबंध के कारण जो आ नहीं सकी, उनने वहीं पे इतने तीव्र ताप के साथ में ठाकुर जी को स्मरण कियो कि उन्हें अपनी गुणमय देही को वहीं त्याग कर दियो और जाके भगवान से मिल गई। ऐसे प्रकार को वर्णन आया है, सुखदेव जी ने कहो। और वहां पे परीक्षित राजा ने ये प्रश्न किया कि कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मने, तो उनने तो अपने परम कांत के रूप में जाने हते, ब्रह्म के रूप में तो जाने नहीं हते, फिर उनके देह, उनके कर्म बंधन कैसे छूट गए और उनके देह कैसे, गुणमयी देह को त्याग कैसे हो गए इत्यादि सब बात को सुखदेव जी ने उसको समाधान कियो कि ठाकुर जी के कृति में ये सब उनने जो भी प्रकार से ठाकुर जी को भजे हते, और वो भजे तो भगवान को हते। और जैसे कि कोई अमृत को पान कर ले, जाने अजाने तो भी वाको लाभ मिले ही है, वैसे उनने भले कोई भी भाव से भजे हुए, पर भजे तो भगवान को हते। और ठाकुर जी की कृति में या प्रकार के प्रश्न नहीं आने चाहिए। और यूं के थोड़ो सो वाको समाधान हो गयो, परंतु आगे भी फिर प्रश्न करो है परीक्षित में, वो बाद में आएगो, वो 5वें अध्याय में आएगो। तो फिर बाद में जब ठाकुर जी के पास सब गोपियां आई और ठाकुर जी ने उनको देख के पहले तो उनको स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रिय करवाणी व प्रजस्य नाम दूतागमन कारण। तो वहाँ पे पूछो कि भाई आप सबको स्वागत है, यहाँ पे आए हो, बहुत अच्छी बात है, पर सब ब्रज में सब ठीक ठाक तो है ना, यहाँ आए को क्या कारण है तुम्हारा, क्यों आए हो, अपने अपने घर को छोड़ के तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए, तुम्हारे पति पत्नी पुत्र आदि तुम्हारी राह देख रहे हैं, उन सबको त्याग कर नहीं चाहिए, तुम साध्वी स्त्रियों हो, या तरह से ऐसे जंगल में आधी रात को ऐसे नहीं आना चाहिए, तुम वापिस जाओ, ऐसे कह के उनको पहले तो ठाकुर जी ने पुनः लौट जाने की बात करी। मैं ये सब आपको ये बातें शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, क्योंकि रात पंचायत जैसे ऐसा है कि बापू भी कोई आधा घंटा में या 1 घंटा में बापू कवर कर पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर अपन आज पूनम है तो मैंने कही कि आज अपन को रात पंचायत देखो, थोड़ा सा अवगाहन तो कर ही देना चाहिए कि क्या विषय है वापस अंदर। तो ठाकुर जी ने जब ऐसे बात करी कि तुम वापस जाओ, तो गोपीजन एकदम चिंता में पड़ गई और थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गई कि अब क्या करना है, तो सबको बुलाया और अब हमको वापस जाने को कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे हिम्मत करके उन्होंने अपनी बात कही कि आप क्या प्रकार को हमको वापस जाने की कह रहे हो, तो हम कैसे वापस जाएं, क्योंकि हम तो सब कुछ त्याग करके आपके पास आए हैं, हमारा तो कोई विषय कामना है ही नहीं हमारे मन में, हमने तो जब से आपके दर्शन करे हैं तब से आपके ही विषय में हमने तो सोचो है, समझो है, जानो है, और हमको और कछु पसंद, हमको और कछु हमारे मन को रुचे ही नहीं है, हम कैसे वापस जाएं, हमारे पैर उठे ही नहीं है वापस जाए के लिए, वापस जाए के लिए तो हम आए नहीं है आपके पास, आप यहाँ प्रकार तो हमारा त्याग मत करो, इसे के वो विनती करें। और फिर ठाकुर जी ने उनकी विनती को स्वीकार करके सब हंस दिए और फिर लघुरास भय, बाहर लघुरास के भीतर गोपी जनन को अपने सौभाग्य पे थोड़ा सा मद हो गए और वे सोचने लगी कि वो हम तो कितनी या भूतल पे स्त्रियन में हम कितनी भाग्यशाली हैं और हमारे कितनों
भाग्य है कि हमारे संग भगवान रमण कर रहे हैं। और अब तो ऐसा होगा कि हमारे संग रमण करने के लिए भगवान लालायित हैं, और जब वो हमको विनती करेंगे तभी हम रसदान करेंगे। ऐसे करके थोड़ा सा उनको ये बात को मद हो गया। ठाकुर जी तो उनके अंतःकरण में ही विराज रहे हैं, तो कोई साधारण कोई पुरुष तो है नहीं, सबके जीव मात्र के अंतःकरण में विराजने वाले हैं। तो जीव के अंदर, उन गोपीन के अंदर भी जब ये अहंकार देखो तो भगवान वाई समय अंतर्धान हो गए। तो उनको दशमाय प्रसाद आया तत्रैव अंतर जीवत, ऐसे करके वास्तव का देंगे अंतिम जो श्लोक है प्रथम अध्याय को, तो हमें यही कहिए कि उनको जो मान हतो वो वाको शमन करने के लिए और उनसे कृपा करने के लिए भगवान वहीं पे अंतर्धान हो गए। फिर जैसे ही भगवान अंतर्धान भय तो गोपी जन एकदम सु अपने बीच में सु ठाकुर जी को अंतर्धान होते हुए भय देखे तो उनको एकदम सु दुख हो गया और एकदम सु धक्का लगो कि अरे कहाँ पर धर गए। और वह वक्त उनके अफरा तफरी मची और यहाँ से वहां से ढूंढने लगे कि कहाँ गए हमारे बीच, अभी तक तो हते, अब कहाँ पधार गए। और उनकी स्थिति एकदम विचलित हो गई और वो यहाँ वहां ढूंढने लगी सब जगह और अनर्गल प्रलाप करने लगी आपस में। और कभी वृक्षंसु, कभी पशुंसु, कभी गायंसु, कभी हरिणींसु, पूछने लगी कि हमारे प्रभु कहीं देखे हैं का। और जब करके सब जगह ऐसे ऐसे ढूंढने लगी। और फिर उनको धीरे धीरे जब ठाकुर जी के प्रकट हुए तो कोई आधार नजर नहीं आ रहे, तो धीरे धीरे ठाकुर जी की लीला को स्मरण करके वो फिर उन लीलान को अवगाहन करने लगी, उन लीलान को अनुकरण करने लगी। उन लीलान के अनुकरण करते करते जब उन्हें देखो कि अब भी ठाकुर जी के पधारे के कोई आसार नहीं है, फिर उन्हें करते करते देखो कि अरे यहाँ पे ठाकुर जी के चरण के निशान दिख रहे हैं और संग में कोई एक और अन्य चरण के निशान भी हैं जो कि कोई स्त्री के लग रहे हैं। तो वहाँ पे देखते देखते वहाँ के पीछे पीछे वो एक स्थान पे आए और वहां देखे कि ठाकुर जी तो वहां पे है नहीं और एक गोपी वहां बैठी रो रही है। वाक्य संग ऐसा भयो तो कि ठाकुर जी वाकु लेके पधारे और गोपी ने वाकु भी मन में यो भयो के हो इन सब गोपी को छोड़ के वो प्रभु मेरे साथ अलग पधारे हैं। तो वाकु भी थोड़ा सा अपने ऊपर मद हो गयो। तो वाने भी ठाकुर जी से कही कि अब मैं चलवे में असमर्थ हूँ, आपको कहीं ले जाना है तो मैं उठा के ले जाऊँ। ऐसे कही तो ठाकुर जी ने कही कि अच्छो पीठ से मेरे सवार हो जाओ, यूँ करके चुके और वहीं पे अंतर्धान हो गए। तब वो गोपी जो होती वाकु दुख भयो कि अरे, फिर वाने फिर प्रार्थना करनी शुरू तो हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज यूं कह के इतने में दूसरी गोपियां भी आ गई। तो उनमें आके फिर पूछो कि क्या भयो, तब बाने कही कि मैंने अपना ऐसो मान कियो या तो वजह से ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। तब जाके उन गोपीन को भी अपने जो अपराध को स्मरण भयो कि अरे हम ये अपराध हो गया, हमने मान कियो, या तू वाह मान को शमन करवावे के लिए और क्षमा प्राप्ति के लिए उनने फिर ठाकुर जी को स्तुति करनी प्रारंभ करी। कि यहाँ देखो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ये स्क्रीन को। तो जब से सुजात चरण यहाँ पे ये तो गोपी गीत को है, तो वहां पे फिर उनने गोपी गीत फिर स्तुति के रूप में गोपी गीत को प्रारंभ किया। और वह गोपी गीत के अंत में जब उनके जो प्रयत्न जो उनने करे थे ठाकुर जी को प्राप्ति के, वो सारे उनको विफल होते दिखे। तब उनको फिर भयो के नहीं अब हमारी भूल हुई है, और उनने फिर
विलाप कियो, जब स्तुति से भी प्रकट नहीं भय तो उन्हें विलाप कियो। यहाँ पे उनकी और ठाकुर जी के मतलब उनके प्रयत्न की, उनके साधन की परीक्षा पूर्ण भई और ठाकुर जी के भी उनकी परीक्षा कैसे प्रभु ठाकुर जी की परीक्षा, प्रभु जो है वो अपने भक्तन की परीक्षा की पराकाष्ठा वो भी यहाँ पे पूर्ण भई। वाके बाद ठाकुर जी वहां पे प्रकट भय के तासा महावीरभूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सगी साक्षात मन्मथ मन्मथ। तो ठाकुर जी वहां पे प्रकट है उनके मध्य में और उनको देख के सब गोपियां एकदम प्रसन्न हो गई और उनने फिर ठाकुर जी के ऊपर में उनको पहले तो ठाकुर जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानने लगी। कोई उनको स्पर्श करे, कोई उनको देख के पलक नेत्रन से देखती रहे, कोई थोड़ी सी नाराज की दृष्टि से देखे है, या तरह से आपको वर्णन है। और फिर सब गोपी ने इनको ठाकुर जी को पधरा के एक स्थान पे लेके आए और वहां अपना उत्तरीय बिछा के और ठाकुर जी को अपने ऊपर पधरा के और वहां पे गोपी परिषद वहां पे हो गए हो। या कि चर्चा में भी अन्य कई स्थलों पे कर चुका हूँ, पर यहाँ क्योंकि ये विषय पाछो नया है और यहाँ पे कुछ विद्यार्थी भी नए हैं, या कि मैं उन सब विषय को पुनरावर्तन कर रहा हूँ कि वहाँ गोपी परिषद भयो, जहाँ पे उन लोगों ने ठाकुर जी से प्रश्न किया। वह प्रश्न के उत्तर में भगवान ने उनको जो जवाब दिए वाको अपन गोपी परिषद के रूप में जाने। तो यहाँ पे ठाकुर जी आचार्य चरण या अध्याय की कारिका में यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं साधन संपत्त्या हरितुष्यति कस्यचित् भक्तानां दैन्यमेवैकं हरितोषण साधनम। ये कह के यहाँ पे गोपी जनन को मतलब इनको जो ताप है वो इनको जो दैन्य है वो ही भगवान के संतुष्टि को साधन है, ये बात वहां पे कही गई। और वाके बाद गोपी जनन ने प्रश्न किया कि भाई 3 प्रकार के हमारे लोग हुए हैं। यहाँ देखिए गोपियां कहने लगी कि कितने एक तो भजन करने वालों को स्वयं भी भजते हैं, कितने एक भजन न करने वालों को उनके भजन की परवाह न करके भी भजते हैं, पर कितने एक भजन करने वाले तथा भजन न करने वाले दोनों को नहीं भजते हैं। इन 3 प्रकार के पक्षों का स्पष्ट वर्णन कीजिए। भजतो अपि भजतो भजन्ति एक एतद् विपर्ययम् नो, दोनों को ही भजन, दोनों ही प्रकार को भजन करने वाले को भजन नहीं करने वाले भी एक दूसरे हुए। इन तीनों में तो इन तीनों पक्षों को स्पष्ट वर्णन करो। मतलब यहाँ पे उनने यूँ पूछिए कि आप इनमें से कौन से प्रकार के हो। स्पष्ट तो सीधे यूँ नहीं कह दिया है कि आप इनमें से कौन प्रकार के हो, पर यूँ कह दिया कि इन पक्षों का स्पष्ट वर्णन कीजिए। यानी यूँ कह रहे हैं कि लोक में फल और स्वरूप तथा साधन से 3 पक्ष संदिग्ध है, अर्थात स्पष्ट नहीं है। पहला पक्ष कुछ जो जैसे भजन करते हैं उनका स्पष्ट रीति से वैसे ही भजन करने वाले होते हैं। सब जियो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्, ये भगवान को गीता को वाक्य है। तो वही बात को याद करा के कह रहे हैं कि जो जिनको भजन करे हैं उनको स्पष्ट रीति से वैसे ही भजन करने वाले कुछ लोग होने हैं। और दूसरा पक्ष कुछ जो भजन नहीं करते हैं उनके भजन की परवाह न करके उन्हें भी भजते हैं। मतलब जो नहीं भजन करें उनको भी भजन करें, ऐसे भी कुछ लोग हुए हैं। और तीसरे कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो भजन करने वाले और नहीं करने वाले दोनों को ही भजन नहीं करते। इन तीनों को एक दूसरे या तीसरे में तो जो 2 प्रतियोगी हैं, प्रथम उनके फल कहिए, यानी कि इनको क्या हो गए हैं, क्यों ऐसे करे हैं, ये बात आप कहिए। तो वहां पे ठाकुर जी उनको ये बता रहे हैं कि जो भजवे वाले को भजन करे हैं वो वहां पे स्नेह नाम की कोई चीज नहीं है।
वहां पे बस एक ने कियो वाको उपकार को बदला दूसरे ने सामने से वाको उपकार दे दियो, पूरो कर दियो, वाको भी भजन कर दियो, तो वहां पे स्नेह नहीं है, वहां पे सहजता नहीं है, वहां पे केवल एक प्रकार से व्यापार है। और दूसरे जो भजन नहीं करने वाले को भी भजन करे हैं, ऐसे भी कुछ लोगों में, तो वो कौन लोगों में कि जो भजन नहीं करने वाले को भी भजन कर रहे हैं? तो वहां पे जो माँ बाप अपने पुत्र संतान आदि से प्रेम करे हैं, वो वाकफता में आवे हैं कि जो संतान उनको भले कैसे भी रखे या कैसे भी उनके संग व्यवहार रखे, पर माँ बाप कभी भी अपने संतान को भजन छोड़े नहीं है। भजन से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि उनको स्नेह करना नहीं छोड़े हैं। तो ये वो प्रकार के लोग हैं। यहाँ पे स्नेह नहीं, पर यहाँ पे पूरा पूरा स्नेह है, यहाँ पे कोई व्यापार नहीं है, यहाँ पे कुछ सामने को बदले की वो चाहना नहीं है, या तो यहाँ पे ये शुद्ध स्नेह जरूर है। तो और तीसरे कुछ ऐसे हुए हैं कि जो भजन कर तो हो या नहीं कर तो हो, कोई को भी भजन नहीं करें, तो वो चार प्रकार के लोग हुए हैं कि या तो वो आत्माराम है, या आप काम है, या जिनको कोई कामना नहीं है उनको भी कोई को भजन करे कि कोई को भजवे की आवश्यकता नहीं है। जो केवल अपनी आत्मा में रमन करते हुए उनको भी कोई को भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तब कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि जो कृतज्ञ हुए, जो दूसरे के किए को कीमत नहीं जाने हैं, उनकी वैल्यू नहीं करें, ऐसे लोग हुए हैं, वो कृतज्ञ हुए हैं। पर यहाँ को मतलब वहां पे ठाकुर जी ये बताने हैं कि मैंने तुम्हारा भजन नहीं कियो, वह बात को लेके तुम मेरे ऊपर कोई प्रकार की असूया मत करियो, क्योंकि मैं तुम लोगों को भजन नहीं करके, साक्षात भजन नहीं करके मैंने तुम्हारो परोक्ष रूप से भजन कियो हतो, और मैं तुम्हारो भजन साक्षात कभी नहीं कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर कह रहे हैं कि भजन न करने से जैसे चित्त भगवान में लगा रह सकता है, उसका उदाहरण बताते। मैंने तुम्हारो सामने से वैसे भजन नहीं कियो, तो वाको एक कारण ये है तो कि मैं तुम्हारा भजन नहीं करूंगा तो तुम्हारा मन मेरे में ही लगो रह जाएगा। जैसे यहाँ पे भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि भजन न करने से जैसे चित्त भगवान में लगा रह सकता है, उसका उदाहरण बताते हैं। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान अन्य निर्भुतो न वेद। पहले कोई निर्धन हो, फिर उसे धन मिले और फिर नष्ट हो जाए वो धन, तो वो व्यक्ति उस धन की चिंता में डूब जाता है और सारी सुध खो बैठता है। ये लोक प्रसिद्ध। इसी तरह गोपिकाओं को भी भगवान मिले और मिलकर तिरोहित हो जाएं, तो वे फिर ऐसी खो जाएंगी भगवान में कि फिर कभी प्रपंच की सुध नहीं आएगी। तो ये कारण है, तो भगवान उनको कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा भजन या कारण से नहीं कियो, ताकि तुम अब कोई प्रपंच की याद ही ना आवे, मेरे में ऐसे रम जाओ। और फिर कह रहे हैं कि एवं स्वस्त्या भजने हेतु मुक्त्वा प्रकृते तद भावमाह एवं, यानी इस प्रकार भगवान ने गोपी जनों को अपने भजन न करने का मर्यादा अनुसार जो कारण था वो बताया। चलते प्रसंग में बताते हैं कि मैं आपका भजन कर रहा हूँ, जिसका स्पष्टीकरण एवं मदर्थो श्लोक में करते हैं। एवं मदर्थोजित लोक वेद स्वानाम ही वो मयि अनुकृत्य अबला मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासुई तुम मारहत तत्प्रियम प्रिया। यानी हे अबला गोपिकाओं को, इस प्रकार मेरे लिए लोक वेद और स्वजनों का त्याग करने वाली जो तुम हो, उसकी वृत्ति मुझ में लगी रहे, जिसके लिए परोक्ष भजन करता हुआ मैं अंतर्धान बन जाऊं, तो ताकि तुम्हारी वृत्ति मेरे में लगी रहे, यानी कि निरोध तुम्हारा बने रहे मेरे में और सिद्ध हो, निरोध मेरे में सिद्ध हो, या के लिए भगवान उनको भजन नहीं करते हुए, साक्षात भजन नहीं करते हुए परोक्ष भजन करते रहे। मैं अंतर्धान हो गया हूँ, इसलिए प्रिया का प्रियतम से ईर्ष्या करना योग्य नहीं है। तुम मेरी प्रिया हो और तुम्हारो मेरे से ईर्ष्या करना योग्य नहीं है। ये वहां पे भगवान ने उनको समझाया।
कि ये कारण હતો कि मैंने तुम्हारा भजन नहीं किया। और फिर और भी आगे भगवान उनको आज्ञा करें हैं कि अगले श्लोक में एवं तासाम मनो मार्जनम उक्त्वा भक्ति मार्ग विरोधम परिहर्तुम तास स्तौति न पारेयहमिति। इस प्रकार गोपियों के मन का भ्रम मिटाकर भक्ति मार्ग के विरोध को मिटाने के लिए, मतलब ये भक्ति मार्ग में विरोध को मिटा, यानी विरोध कौन सा कि भगवान भजन करने वाले को सामने उस जैसे प्रकार तो भजन नहीं करे हैं, ये बात को वो मिटावे के लिए अगले श्लोक में स्तुति कर रहे हैं। वहाँ भगवान गोपीजनन की स्तुति कर रहे हैं। अब तक तो अपन ने देखो कि भगवान को की स्तुति गोपीजन कर रहे थे, पर यहाँ भगवान स्वयं गोपीजनन की स्तुति कर रहे हैं। वो क्या आज्ञा कर रहे हैं कि न पारये हम निरवध्य संयुधा तो साधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्वः प्रतियात साधना। यानी कि तुम उपाधि रहित भजन कर मेरे साथ मिलियो। उपाधि रहित यानी कोई प्रकार की प्रयोजन के लिए नहीं, कोई जहाँ प्रयोजन हो तो वो उपाधि कहलाएगी कि भाई क्या सामने से ठाकुर जी उनको दे रहे हैं, ये सोच के कोई भगवान को भजन करने के लिए नहीं आए हैं। भगवान को भजन उनने उपाधि रहित किया है। तो वही कह रही कि यहाँ तुम उपाधि रहित भजन कर मेरे साथ मिली हो। जिस उपकार का प्रतिकार मैं ब्रह्मा की आयु से भी नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी की आयु यानी मतलब भगवान को एक और ब्रह्मा जी को एक दिन एक युग समान है, और उनकी जो पूरी आयु है वो तो सहस्रों युग है। तो या तो वो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा की आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे उपकार को प्रतिकार में नहीं दे सकूंगा। तुमने जा प्रकार को स्नेह मेरे को दियो है, वाकु मैं सामने से बदला कभी भी नहीं चुका सकूंगा। तुम लोगों ने ग्रह की कठिन श्रृंखला को तोड़कर मेरा भजन किया है। या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, जिसका प्रत्युपकार तुम्हारे से ही संभव है। संवृश्य तद्वः प्रतियात साधना, यानी मैं तुम लोगों को, तुम्हारे ऊपर ग्रह की श्रृंखला है, तुम्हारे ऊपर संसार की जंजीर संसार की जंजीर तो तुम बंधी हुई हो, वह जंजीर तो कोई तोड़ ही नहीं सके है। साधारण जीव जो होवे वो कभी भी तोड़ नहीं सके वह संसार रूपी श्रृंखला को, पर तुमने वो संसार रूपी श्रृंखला को तोड़ियो है, क्योंकि तुम तन मनस्का सदा लापा सदविचेष्टा सदात्मिका तद्गुणानेव गायन्ते हो। तो ऐसी हो तुम मेरे में ही मन लगाए हुए, तुम्हारो तन मनस का तद विचेष्टा, तुम्हारी सारी क्रियाएं मेरे लिए ही हैं। तद विचेष्टा तद तन मनस का तदालापा, तुम्हारो आलाप यानी तुम मेरे ही विषय में मेरे ही गुणगान में लगी रही है। तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका, तुम मेरे में तुम्हारी आत्मा, तुमने मेरे को अपनी आत्मा रूप कर लियो है। सदात्मिका, जिनने भगवान को अपने आत्मा रूप बना लियो है, ऐसे ही गोपीजन है। तो ऐसा तो मैं कभी भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं तो सदा भगवान ही रहूंगा। मेरे लिए सब कुछ संभव है। तुम्हारे लिए तुमने जो तुम्हारे लिए संभव नहीं है वो करके बताया, या कारण तो मैं तुम्हारे प्रेम को कार को बदला मैं कभी भी नहीं दे सकूंगा। ये बात वहां पे ठाकुर जी ने गोपीजन को कही, और वहां के बाद जो है वो भगवान को हरास भयो है। और वहां के बाद फिर वापस परीक्षित को वाक्य अंत में पंचाध्याय के 5वें अध्याय के अंत में परीक्षित ने फिर से एक प्रश्न किया है सुखदेव जी को, जापो उनने फिर वापस उत्तर दियो है कि भगवान की कृति में कोई प्रकार को विपरीत भावना नहीं आनी चाहिए। वो सब हमें जो भी कुछ वहाँ पे समाधान किया है वो कभी अपन राजपंच अध्याय देखेंगे तब अपन को वो समाधान भी देखने को मिलेगा। आज को केवल विषय में यही स्पष्ट करना तो जो कि आज के या विवेचन में आवे वाला है, या फिर ये राजपंच अध्याय को थोड़ा सा रिव्यू
अपन ने देखो। तो अब ये विषय को ध्यान में रख के अपन निरोध लक्ष्मी की 7वें श्लोक की टीका को अपन देखें। कि जामे ये आज्ञा कर रहे हैं कि ननु कृते गुणगाने किं भवति इत्याशंक्य तत्र प्रवृत्त्यर्थम परिचायकम फलम आहुः। या में अपन ने देखो कि गुणगान कितना महत्व है। कि गुणगान सुखदेव जी जैसे ज्ञानी को भी गुणगान की आवश्यकता लगी है और उनको भी गुणगान के द्वारा जो सुख की प्राप्ति भई है वो आत्मानंद में भी नहीं मिली। अच्छा, गुणगान को वहां पे महत्व अपने को 6ठे श्लोक में दिखाया। उसके बाद 7वें श्लोक की उत्थानिका में हरराय जी महाप्रभु वाक्य उत्थानिका में प्रश्न उठा रहे हैं कि गुणगान करवेसु क्या हो। ये ननु कृते गुणगाने किं भवति इति आशंक्य तत्र प्रवृत्त्यर्थम परिचायकम फलम आहुः। तो वहां पे गुणगान में प्रवृत्ति क्यों होनी चाहिए, क्यों व्यक्ति को गुणगान करना चाहिए, वह को फल बता रहे हैं कि गुणगान को फल क्या है। वो 7वें श्लोक के अंदर आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। और वो 7वां श्लोक है क्लिश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् तदा सर्वं सदानंदम हृदिस्थम निर्गतम बहिः। कह रहे हैं कि जब यदा क्लिश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो भवेत्, यानी अपने जीवन को क्लिश्यमान यानी क्लेश वाले देखेंगे, अपने जीवन को क्लिश्यमानान् जनान्, जनान मतलब अपने जीवों को जब भगवान क्लिश्यमान देखेंगे, क्लेश युक्त देखेंगे, दृष्टवा, तब भगवान कृपा युक्त होंगे। सदा सर्वम सदानंदम हृदिस्थम निर्गतम भये। तब सर्व जो सदानंद है, जो भी सदानंद हृदय में स्थित है, वो बाहर प्रकट होगा। जैसे कि गोपी जनन को क्लेश युक्त देख के इति वहां पे जो गोपी जन को जो पाप हतो यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्थनेषु भीता शनै प्रियद धीमहि कर्कशेषु तेनातवीं नटसि तद यथतेन किंचित पूर्वादिभिः भ्रमतिर्भवदायुषां न। ये गोपी गीत को अंतिम श्लोक। उसके बाद इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्तधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वहां पे उनने जो प्रगान कियो, ये प्रलाप रूपी गान कियो, और इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च, उनने साथ में प्रलाप भी कियो, मतलब विशेष रुदन कियो। तो क्या भयो रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वो सुस्वर उनने रुदन कियो, क्यों? क्योंकि कृष्ण दर्शन की उनकी लालसा थी। अपने के लिए नहीं, अपने प्राण की रक्षा के लिए गोपी जन ने रुदन नहीं कियो, अपितु भगवान के दर्शन की लालसा के कारण उनने वहां पे रुदन कियो है। तो भगवान के दर्शन की लालसा होने के कारण जो उनने रुदन कियो, तब तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर साक्षात मन्मथ मन्मथ। तब उनके मध्य भगवान प्रकट भय। कैसे? पीताम्बरधारी, तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान, स्मयमान यानी मुख पे मुस्कान है, स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर है। तब पीताम्बरधारी रग्वी यानी वनमाला धारण किए हुए साक्षात मन्मथ के भी मन्मथ के रूप में भगवान वहां प्रकट भए। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि गुणगाने तत्स्वरूप स्मृत्या तत्प्राप्त्यर्थम क्लिश्यमानान् उपतपतो जनान् दृष्ट्वा।
अवलोक्य यदा परीक्षा साधन संपत्तौ कृपायुक्तो भवेत् तदा सर्वं सर्वांश पूर्णं सदानंदम परम ब्रह्म यशोदोत्तंगलालितम हृदिस्थम परम व्योमनि प्रादुर्भूतम बहिः प्रकटम भवति इत्यर्थः। जब गुणगान के द्वारा भगवान को जब स्वरूप की स्मृति होगी, तब वह स्वरूप की प्राप्ति के लिए क्लेश्यमान, जब उनको जीवन को हृदय क्लेश युक्त होएगो, क्लेश्यमान अनुपतपतो जनान दृष्टवा, जब ऐसे क्लेश युक्त अपने जीवन को भगवान देखेंगे, तब अवलोक्य यदा परीक्षा साधन संपत्तौ कृपायुक्तो भवेत्। परीक्षा साधन से संपत्ति संपन्न हो के, यानी कि गोपी जनन को जो क्लेश तो ताप क्लेश तो बाकी परीक्षा भगवान ने ली, और वो अब तो अंतिम अवस्था तक पहुंच गई। उनको इतना ताप भयो कि गोपी जन अब अंतिम अपनी अंतिम स्थिति पे पहुंच गई कि अब तो देह को त्याग ही हो जाना है। तो यहाँ पे भगवान की भी परीक्षा की पराकाष्ठा हो गई कि यासु अधिक परीक्षा तो भगवान और ले ही नहीं सके अपने जीवन की। यासु तब भगवान कृपायुक्त भय, कृपायुक्त भवे, तो जब ऐसे भगवान कृपायुक्त होंगे तब क्या होगा, तब सर्वम सर्वांश पूर्णम सदानंदम परम ब्रह्म, यानी तब सर्वम, यहाँ पे जो सर्वम शब्द दिया गया है वो वाको तात्पर्य यह है कि सर्वांश पूर्ण, यानी संपूर्ण स्वरूप को, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को, सदानंदम परम ब्रह्म, सदानंद, सदा जो आनंद रूप है, भगवान को जो नाम है कृष्ण, कृष्ण को अर्थ है सदानंद। कृषिर्भुवाचको शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक, कृष्ण शब्द जो है वो सत्ता को वाचक है, मतलब अस्तित्व को वाचक है, जाको सदा अस्तित्व है, जो हमेशा है, था और रहेगा, वो स्वरूप जो है वो कृष्ण शब्द को वाचक है। कृषिर भूवाचक, भू को अर्थ मतलब है सत्ता, अस्तित्व, और न वो आनंद को सूचक है, यानी कि जो जा में सदा आनंद स्थित है, जो सदा आनंद रूप है, ऐसे परम ब्रह्म वो कौन है, वो यशोदोत्तंग लालित है, वो ही सदानंद है। जो यशोदा के उत्संग में लालित जो स्वरूप है, यानी ब्रज में स्थित जो स्वरूप है, वो परम ब्रह्म है। और वो हृदयस्थम, वो कहाँ पे निवास कर रहे हैं, जीव के अंतःकरण में निवास कर रहे हैं। तो हृदयस्थम, हृदय में जो स्थित परम व्योमनी, परम व्योमनी यानी कि हृदय रूपी आकाश में जो स्थित हैं, वो बाहर प्रकट है। अब जब दृश्यमानान जनांतर, जब अपने जीवन को क्लेश देखेंगे, तब भगवान बाहर प्रकट होंगे। जो हृदय के अंदर विराज रहे हैं, हृदय रूपी आकाश में जो विराज रहे हैं, वो भगवान बाहर प्रकट होंगे। अतएव रजसीमंतिनी नाम गुणगानेन हृदय प्रादुर्भूय तन्मनसा इत्यादिना तथा भाव संपत्तौ कृपया भगवान प्रादुर्भूत इत्युच्यते। यही कारण गजसीमंतिनी नाम गुणगानेन, गजसीमंतिनी यानी गोपीजन, उनके गुणगान को हृदय प्रादुर्भूय, भगवान हृदय प्रादुर्भूय, जब उनके हृदय में प्रादुर्भूत हुए, गजसीमंतिनी के यानी गोपी जनन ने जब गुणगान किया, तो भगवान उनके हृदय में प्रादुर्भूत हुए, प्रकट भय, और या कारण वो तन्मनस्का हो गई। तन्मनस्का सदा लापा सदविचेष्टा सदात्मिका तद्गुणा ने गायन, यानी वो भगवानमय हो गई संपूर्ण रूप से। उनको मन, हृदय, वाणी सब में भगवान प्रकट हो गए। तन मनस्का इत्यादि न तथा भाव संपत्तो, मतलब वह प्रकार के भाव तू संपन्न हो गई। तब कृपया भगवान प्रादुर्भूत, तब कृपा के द्वारा भगवान प्रकट है, प्रादुर्भूत है।
तदेव उक्तम आचार्य ही नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति करते थे। मैंने आपको पहले ही कारिका बता दी थी कि कोई की भी साधन संपत्ति से भगवान कभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति करते थे। वो जब तक गोपीजन साधन कर रही थी कि हम ढूंढ के उनको पालें या उनकी लीलाएं को अनुकरण करके हम उनको पालें या फिर उनको थोड़ा सा उपालंब देके या कैसे भी करके या हम अपनी मरणासन्न अवस्था बता के हम उनको पालें, ये सारी बातें उनके साधन हते। तो जब तक वो साधन करती नहीं तब तक भगवान संतुष्ट नहीं भय। पर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूत। जब रुदन कियो, जब ये हो गया उनको कि अब तो हमारे कोई साधन काम नहीं कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें, अब तो हमको ठाकुर जी के दर्शन होने वाले नहीं है। जब ये भाव उनके हृदय में आयो तब वो निसाधन हो गई और तब उनमें दैन्य प्रकट किया। तो भक्तानाम दैन्यमेव एकम हरितोषण साधन। तो वो दैन्य जब प्रकट हुए तब ही भगवान संतुष्ट हुए और तब भगवान वहां पे प्रकट भय। तो हरितोषण साधन सदानंद हृदयस्थम इति पाठे सदानंदस्य भगवतो हृदयस्थम अभिप्रायादिकम निर्गतम भवति इत्यर्थ। यहाँ पे दूसरो एक और पाठ ये है कि सदानंद हृदयस्थम इति, अगर याकू ऐसे ढंग से पढ़ें कि सदा सर्वम सदानंद हृदयस्थम, यहाँ पे दो अलग अलग शब्द दिए गए हैं। देखो सदानंदम और हृदयस्थम, पर कहीं कहीं ऐसा भी पाठ देखने में आवे कि संपूर्ण एक ही पद दिए गए, सदानंद हृदयस्थम। ये पूरा संपूर्ण समास करके एक ही पद दिया गया है, सदानंद हृदयस्थम, यानी कि सदानंद के हृदय में जो स्थित बात है वो बाहर आ गया है। जब अपने जीवन को भगवान क्लेशमान देखे हैं, क्लेश युक्त देखे हैं, तब कृपा युक्त होके भगवान अपने हृदय में जो रही बात है वो बात बाहर प्रकट करे हैं। अगर ये अर्थ लें तो जो वहां पे भगवान ने वो की परिषद में जो बात कही वो भगवान कहेंगे, यानी कि अभिप्रायादिकम बहिर्निर्गतम भवति। भगवान को जो अभिप्राय है अपने भक्तन के विषय में वो बाहर निकले। वो अयम आशय है या कुछ स्पष्ट कर रहे हैं ये बात को। ये जो अपन ने आखिरी लाइन पढ़ी सदानंद हृदयस्थम इति पाठे, या को ऐसे समझें कि रुदु सुस्वरम, ये जो गोपी जन को सुस्वर रुदन की जो बात कही गई थी, तो वहां पे रुदु सुस्वरम इत्यादि ना गुणगान समय एव अति दैन्य भावे यदा कृपा युक्तो जाता सदा तत्र स्वाभिप्राय प्रभुनैव मया परोक्षम भजता और न पारयहम इत्यादि ना आविर्भावित अन्यत्रापि गुणगाने क्लेशेन प्रादुर्भूय स्वकृपया ज्ञापयिष्यति तदाशया गुणगानमेव कर्तव्यम्। यानी वहां पे कहने को तात्पर्य है कि जब जब उन्हें रुदन कियो स्वर सहित, तब गुणगान के समय दैन्य को जो भाव है वो अति दैन्य को जो भाव हो गोपी जनन को, तब भगवान कृपायुक्त हो गए और तब अपना अभिप्राय भगवान ने माया परोक्षम भजता तिरोहितुम और न पारे हम निरवध्य सृजन, ये जो बात कही गोपी जनन को कि मैंने तुम्हारो परोक्ष रूप से भजन कियो हतो और मैं तुम्हारे प्रेम को बदला कोई भी तरह से मैं नहीं दे सकूं। मैं ब्रह्मा जी की आयुष्य भी पालूं तो भी मैं तुम्हारे प्रेम को प्रत्युपकार मैं नहीं दे सकूं। ये जो भगवान के अभिप्राय हतो वो कब प्रकट भयो, जब अपने जीवन को भगवान ने क्या प्रकार से क्लेशमान देखे। तो या तो ये जो आविर्भाव इत्यादि ना आविर्भवती, यानी भगवान या प्रकार से जैसे गोपीजनन को उनने ये बात कही वैसे ही अन्यत्र भी, यानी कि अपन भी अपनी जैसे जीव भी यदि गुणगान करेंगे उन प्रकार से जैसे गोपीजनन ने किया, तो गुणगाने क्लेशेन प्रादुर्भूय, मतलब क्लेश सहित, क्लेश सहित को मतलब है कि भगवान के प्रति
इतनो क्लेश उनको भयो, दुख उनको भयो कि वो गुणगान के रूप में बाहर प्रकट भयो निस्साधन के भाव सहित। तब भगवान भी प्रकट होके अपनी कृपा को ज्ञापन अपने भक्तन को यानी कि अपन को भी कराएंगे। या आशय सु सदाशया गुणगानमेव कर्तव्यम नित्यतः, या आशय सु कह रहे हैं कि गुणगान ही करना चाहिए। यानी गुणगान क्यों करना चाहिए, वाको पूरो यहाँ पे या श्लोक के अंदर कारण बता दिए कि क्लिश्यमानान जनान दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवे तदा सर्वं सदानंदम हृदिस्थम निर्गतम बहि, अथवा तो तदा सर्वम सदानंद हृदिस्थम निर्गतम बहि। यानी जब अपने जीवन को क्लेश युक्त देखेंगे तब कृपा युक्त होके भगवान प्रकट होंगे और अपने हृदय के जो भाव है वाको भी प्रकट करेंगे, या जो समझो कि भगवान जो हृदय में विराजे हुए हैं वो बाहर प्रकट होंगे। तो क्या कारण हो, गुणगान आवश्यक है और वो भी भगवान के प्रति क्लेश सहित निसाधनता के भाव के साथ में गुणगान आवश्यक है। वो जब होगा तब भगवान बाहर प्रकट होंगे। या तो गुणगान की आवश्यकता है, ये बात यहाँ पे 7वें श्लोक में आचार्य चरण ने आज्ञा करी है। तो आज अपन यहाँ पे विराम ले रहे हैं या 7वें श्लोक में, और या के आगे को अपन अगले सप्ताह देखेंगे। और आज के जो विषय है या में आप सब लोगों को जो भी कोई प्रश्न है अगर अभी तो अभी आप कर लें, अगर पढ़े के बाद में या 1-2 बात सुनिए कि बाद में आपको कोई प्रश्न आवे तो वो आप अगले सप्ताह भी जब अपन प्रारंभ करेंगे तब भी आप पूछ सको। ताकि मैं आप लोगों निकुंज भाई और भावी भाई से कहूँगा कि आप लोगों को अनम्यूट करें एक एक करके जिनको भी प्रश्न करना हो तो, और उसके बाद अपन आपको समाधान देखेंगे। दीपेश भाई, यस दीपेश भाई अनम्यूट करें और आप अपना प्रश्न करें। दंडवत प्रणाम जय जय। आशीर्वाद बोलो। हाँ, आपने बताया ना कि ठाकुर जी ने गोपियों की परीक्षा ली कि ये साधन रूप जो कर रहे थे उनकी परीक्षा ली, और इतनी तक परीक्षा ली कि मृत्यु न हो जाए तो प्रकट हो गए, ऐसी बात की ना। तो मेरा प्रश्न ये है कि ठाकुर जी ही अगर साधन रूप बने हुए हैं गोपियों के लिए, तो फिर वो साधन रूप होके परीक्षा लेने की क्या जरूरत होगी? गोपी जनन की परीक्षा लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठाकुर जी को गोपी जनन के भीतर भाव रूप में जो भगवान स्वयं ही प्रकट भये हैं उनकी परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर अपन क्योंकि गोपी जनन को गुरु मान के बैठे भये हैं, यासु परीक्षा इतनी तक की तैयारी होनी चाहिए ये बतावे के लिए ठाकुर जी की ये लीला है। इतनो तुम्हारे अंदर ताप क्लेश जब होगो तब जाके प्रभु कृपा उचारेंगे। ताप क्लेश की क्या पराकाष्ठा है वो अपने को ये गोपी जनन के जो ताप क्लेश है वास्तु अपने को मिला। जो अपन बात करें ना कि ताप क्लेश को तिरोभाव हो गया है, तिरोभाव हो गया वगैरह जो बात अपन करे हैं वो मंत्र के अंदर भी अपन यही बात कह रहे हैं कि ताप क्लेश को तिरोभाव हो गया है। तो वो कैसा ताप क्लेश, वो ताप क्लेश ये ऐसे जो गोपी जनन को है तो वो बाकी तैयारी रखनी है। उतनी तक की परीक्षा अपनी जीव की अपने भगवान लेंगे ये बताना है। बाकी गोपी जनन की परीक्षा लेने की भगवान को कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान तो सब जाने ही है। गोपी जनन तो श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। जब भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि न पा रही है हम मेरे वक्त संयोजाम, तो भगवान को का ये मालूम नहीं है कि गोपी जन कहाँ तक पहुंच सके। ये तो लीला है। अब ये हमें यही बताना है कि यदि वा प्रकार को सुख की प्राप्ति, जो प्रकार के सुख की प्राप्ति गोपी जन्म की वही वा प्रकार के आनंद की प्राप्ति, स्वरूपानंद की प्राप्ति यदि करनी है तो उसके लिए कितनी तैयारी होनी चाहिए, कहाँ तक दुख सहन करवे की
अपनी तैयारी होनी चाहिए, ये वहां पर मालूम कर देंगे। बाकी गोपी जन की परीक्षा लेवे कि ठाकुर जी कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं ठाकुर जी भाव उनके हृदय में विराज रहे। हाँ जी, ठीक है, हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, निहार भाई बोलो। जय जय, આપના ચરણોમાં ખોટાનું ખોટી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ। આશીર્વાદ છે। હા જય જય, પુષ્ટિ જીવમાં દીનતા કેવી રીતે પ્રગટ થાય? એમાં ઠાકોરજીની કૃપા હોય તો જ પ્રગટ થાય કે જીવ કે પુષ્ટિ જીવને કઈ પ્રયત્ન કઈ કરવો પડે તો પ્રગટ થાય દીન? દીનતા તો ત્યારે જ આવે ને જ્યારે સાધનતાનો ભાવ આવે। જ્યાર સુધી આપણી પાસે મીન્સ છે, મીન્સ અને સાધન, જ્યાર સુધી આપણી પાસે સાધન, હું આમ કરીને, હું પૂજા પાઠ કરીને પ્રાપ્ત કરી લઈશ, કે હું સેવા કરીને પ્રાપ્ત કરી લઈશ, કે હું સામગ્રી અરોગાવીને કરી લઈશ, કે હું મનોરથાદિ કરીને હું કરી લઈશ પ્રાપ્ત, એવી રીતનો જે ભાવ છે આ સાધન છે। આ સાધનતાનો ભાવ જ્યાર સુધી રહેશે ત્યાર સુધી નહીં આવશે। નિસાધનતાનો ભાવ જ્યારે આવશે ને કે હવે મારા કોઈ સાધન કામ નથી આવી રહ્યા, હું કંઈ પણ કરી શકું એમ નથી કે જેથી મને ભગવાન પ્રાપ્ત થાય, એ જ નિસાધનતાનો ભાવ છે ત્યારે જ દીનતા આવે, દૈન્ય ત્યારે જ પ્રકટ થાય। જ્યારે માણસની પાસે કંઈ ન હોય ત્યારે જ તો દૈન્ય આવે। તમે રસ્તામાં ભિખારીને જુઓ તો એ કેમ એટલો કરગરે છે, તો એ શા માટે કરગરે છે? કેમ કે એની પાસે કોઈ સાધન નથી હવે કંઈ પણ કરવાનું, હવે બીજાના એના ઉપર જ આશ્રિત છે કે ભાઈ કોઈ દયા કરે, કૃપા કરે, એવી રીતે। તો જીવ પણ અહીંયા ભગવાનની કૃપાને ઉપર જ આશ્રિત છે। ત્યારે એ વસ્તુનો એને અહેસાસ થઈ જાય ત્યારે એની અંદર નિસ્સાધનતાનો ભાવ આવે છે, અને ત્યારે નિસ્સાધનતાનો ભાવ જ તેને પ્રકટ કરે છે। એટલે જય જય, એના માટે એને નિસ્સાધનતા। તો નિસાધનતા માટે એવો ભાવ લાવવાનો કે જે છે બધું ઠાકોરજીનું છે, એમની કૃપાથી થઈ રહ્યું છે। હા, ઓફકોર્સ, જી જય જય, એવો ભાવ જ છે, એ જ ભાવ સાચો ભાવ છે કે જે કંઈ પણ છે આપણે પ્રયત્નથી નથી। જ્યારે પણ ઈચ્છા કરે ઠાકુરજી ત્યારે આ બધું સાધન છીનવી શકે છે। જી જય, completely on his mercy। જી જય જય, દંડવત પ્રણામ જય। હા, આશીર્વાદ છે। Anybody else? જય જય બિરવા, દંડવત પ્રણામ જય જય। હા હા હા, આશીર્વાદ બિરવાબેન બોલો। જે એ આ જે નિસાધનતા હતું, તો આપણે જ્યારે પણ બી સેવા કરીએ કે ઠાકોરજી માટે કંઈ પણ સિદ્ધ કરીએ તો આપણા મનમાં એ જ ભાવ હોય છે કે પ્રભુ જ બધું કરાવનાર છે, એ જ બધું કરાવે છે। બિલકુલ, એ ભાવ તો હોવો જ તો જોઈએ કે આજે ને જે કે એટલે જો આના માટે જ તો આપણે કાની આપવાની પરિપાટી છે આપણે ત્યાં, હા, કે હું કેટલું પણ સાધન કરી લઉં, હું કેટલો પણ સુંદર વસ્તુઓનું સંયોજન કરી લઉં, ઠાકોરજીનો કેટલો પણ મનોરથ આદિ મારા મનમાં હોય એ બધા પૂરા કરવાને માટે હું જે કંઈ પણ કરું, એ બધું ક્યારે ઠાકોરજી સ્વીકાર કરશે? જ્યારે કાની અપાશે, આચાર્ય ચરણોની અને રજ ભક્તોની કાની જ્યારે આપીશ ત્યારે જ પ્રભુ સ્વીકારશે। એટલે મારું કઈ છે જ નહીં, હું કેટલો પણ હવે હું લાખો કરોડો ખર્ચી નાખું તો પણ ઠાકોરજી સંતુષ્ટ એનાથી નહીં થશે। ઠાકોરજી તો રાધા આધાર સુધા વિના પીયું ને બીજું તો કઈ ના ભાવે એવા છે ભગવાન। ઠાકોરજીને મારા સાધનોની કઈ જરૂર જ નથી, મારા પૈસાની કે મારા સંપત્તિની કે મારા કશા પણ જરૂર ઠાકોરજીને નથી। ઠાકોરજી તો પદ્મનાભજીના છોલાથી પણ પ્રસન્ન થઈ ગયા હતા, અને પેલો જે લાખો રૂપિયા ખર્ચીને ગુલાબનો ફૂલ લાવ્યો હતો, હા, એક વૈષ્ણવ બરાબર, એ પણ હતું। પણ આ બધું ઠાકોરજી સ્વીકારે ક્યારે? જ્યારે કાની આપે ત્યારે। એટલે જીવ પોતાના નામથી તો ના જ આપે કે મેં ધર્યું છે, લાવો આપ સ્વીકાર કરો, એ ભાવ તો એ તો કહી જ નહીં શકે। એમ જો કરશે તો ઠાકોરજી સ્વીકાર કરવાના નથી। એટલે નિસ્સાધનતાનો ભાવ આવે એના માટે જ આ કાની આપવાનો, અને સત્સંગમાં પણ જે એકાદશી જનોની સાથે કરવાનું,
મને હવે બહુ જ્ઞાન થઈ ગયું છે, હું પોતે બેસીને સત્સંગ કરી શકું છું, મને કોઈની જરૂર નથી, એવો પણ જો આવે તો પણ ઠાકોરજી કહ્યું એની પર કૃપા કરવાનો નથી. કૃપા ક્યારે કરશે? જ્યારે ગુણોનો સાથ હશે. એટલે જીવનો અહંકાર જરા પણ લેવા દેવા નથી માગતા. બરાબર છે. જે નિસાધનતા એટલે તમે એકદમ નિર્ગુણ, મીન્સ તમારામાં કોઈ પણ પ્રકારની અહમતા મમતા ન હોવી જોઈએ. અને ના એટલે કોઈ મેં મારો પ્રયત્નથી મેં મેળવ્યું છે એ પ્રકારનો જે ભાવ છે એ સાધનતાનો ભાવ છે. મારા પ્રયત્નથી નહીં પણ ભગવાનની કૃપાથી મળ્યું છે એ જે ભાવ છે એ નિસાધનતાનો. બરાબર છે. ધન્યવાદ, પ્રણામ છે. ઓકે, ચલો બીજા કોણ છે? અહીંયા કોઈ નથી. આપણે હવે આશ્રયનું પદ લઈએ આજે. અને હવે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પછી આપણે નેક્સ્ટ વીકમાં જોઈશું. આજે હવે આપણે આશ્રયનું પદ લઈએ. વિજયભાઈ છે કે નહીં? ચેતના, વિજય આવ્યો છે? નથી આવે લાગે, તો આપણે જ લઈએ. ચરણાની કેરો બધો ચરણાની કે શિવલ્લભ મુખ ચંદ્ર છટા બેન સબ જુગમાં અંધેરો ચરણાની કે साधन और नहीं या कहीं जाते हो सुर कहाँ कहे दिलदुरो दिल को चेरो तो आप अपन अगले हफ्ता मिलेंगे. तब तक के लिए मुझे